यूट्यूब चैनल एंड जिस बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ दैट इज़ लाइक काइंड ऑफ थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल्स अबाउट बीइंग अ कोरोना पॉजिटिव. Well, that's a very big thing. That is the reason I have decided to make a video on this. And before I start the video, let me tell you, this is not for the sympathy's sake. This is a kind of an eye opener for me and for the people who are watching this video. Uh, जिसके घर में भी छोटा बच्चा या ओल्ड एज पीपल होते, दे आई थिंक दे टेक ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स दैट आर पॉसिबल. And but how it started, I don't know. I have a small baby at home. He's 3.5 years old son, and we do every possible thing. We have taken a special solution to wash vegetables. We sanitize our home. We sanitize everything. But I don't know ये कैसे हुआ and ये हुआ and how it started and what all happened, that I can definitely share with you, and I really want to share that with you. So how it started, I got a mild fever on 3rd of July, and हमें लगा viral है, so I took antibiotics and fever medicines, and I was recovered on 5th. And 5th को शाम को मेरे बेटे को थोड़ा सा फीवर आया and we gave him medicine too, and he was okay on 7th. 5th को ही मेरे husband को भी थोड़ा सा फीवर आया and he also took the antibiotics and he was fine. Later, like almost पिछले 3 दिन पहले he got severe throat infection. I won't say infection, but I think बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी उनको, and suddenly he was not able to talk because of that खांसी. And टेस्ट चला गया था कि कुछ भी बना रहे थे उनको टेस्ट नहीं आता. एंड बीइंग an educated person, जो हम करते हैं, हम सबसे पहले गूगल ओपन करते हैं एंड वी चेक, अरे ये है तो क्या है, ये है तो क्या है. हम घर में ही पहले डॉक्टर बन लेते हैं. एंड अच्छी बात भी है, इट्स ऑलवेज गुड टू चेक बिफोर विजिटिंग डॉक्टर की क्या ये, क्योंकि ये टाइम है नहीं कि आप फटाफट से डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाओ. यू हैव टू थिंक अ लॉट बिफोर विजिटिंग अ डॉक्टर. तो एंड टेस्ट मुझे भी कम आ रहा था, बट ऐसा नहीं था कि मेरा टेस्ट गया था. एंड इट वाज डेवलपिंग अ स्लोली. रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी देखा था कि आपके लिए इट्स एक्चुअली एन अलार्मिंग सिचुएशन अगर आपका टेस्ट जा रहा है. बट देन आई वाज द टेस्ट वाज देयर, सो आई थॉट कि फीवर है, मौसम बदल रहा है. और मैं जिससे भी बात कर रही थी तो सब बोलते थे यार मुझे तो खुद नहीं आ रहा है, पता नहीं आजकल सब्जियों में कोई टेस्ट ही नहीं रह गया, कैसे भी बना लो. तो मुझे लगा ओके, दिस इज लाइक maybe this is something which is happening with everyone. 2 days before, my husband was so बहुत ज़्यादा उनकी खांसी बढ़ गई थी. तो we all said कि चलो ठीक है, we all decided कि चलो you go and visit a doctor first. जब वो डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे मैं 2 बोतल ग्लूकोज चढ़ाएगा बिकॉज डॉक्टर ने बोला बहुत वीक हो गए हो. और उसके बाद में he recommended corona test and X-ray किया, and doctor actually confirmed कि there are symptoms, but since it's you got a fever since 5th of July, so you're on the verge of recovering, so there's no need to get admitted. You can go for home quarantine, but if you want, तो उन्होंने बोला कि मेरे घर में छोटा बेटा है, तो he said okay, if you want you can definitely get yourself admitted. But there is no need as such because your symptoms are mild and already आपको इतना टाइम हो गया है, तो ये रिकवर होने वाले हो आप. So these are the words that doctor said before the reports came, and then it started. My husband came home and he isolated himself. बहुत पढ़ते हैं हर चीज़ के बारे में, लेकिन जब तक कुछ खुद के साथ नहीं होता ना, तब तक हमें उसकी इंटेंसिटी रियलाइज नहीं होती. When he came, he isolated himself. Me and my son were in shock. My son was crying like hell कि डैडा बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, डैडा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, डैडा प्लीज मुझे गोदी ले दो.
my husband was crying inside and like I was crying outside. The situation was so worse कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि जब एक बार डॉक्टर कंफर्म कर देते ना तो आपको पता होता है कि ऐसा है, but still we were praying for a miracle to happen कि कल reports negative आ जाए, and then the reports came, they were positive. हम एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और हम दोनों बिल्कुल मतलब ऐसे मेंटली पागल से हो गए थे कि ये क्या हो गया और ये कैसे सही हुआ, क्योंकि इनका पॉजिटिव आया था तो ऑब्वियसली मेरा और मेरे बेटे का भी टेस्ट होना मैंडेटरी था, एंड टेस्ट होना इतना आसान नहीं होता। सबको लगता है एक ईयरबड रहता है, दे इंसर्ट इन योर थ्रोट एंड दे इंसर्ट इन योर नोज एंड द सैंपल इज इजीली टेकन। नो, इट्स नॉट। मुझे खुद को सैंपल देने में 3-4 बार he tried and then he could took the sample, but it was not easy for him to take sample of my son. Firstly, he was so scared. Secondly, he was in a lot of pain when he was trying to take the sample because वो बार-बार मुंह हिला रहा था and मैं इसको मुंह पे जबरदस्ती पकड़ रही थी। But I'm really thankful to the guy who took the sample because he was really patient and was very supportive. He was trying to calm me down because उसे पता था कि घर में ऐसा हो गया है और he could actually make out from my gestures how worried I was, and I really wanted कि इसकी reports negative ही आए मेरे बेटे की। So the sample was taken and whole that day was very I think the worst day of my life because उसके एक रात पहले ही हम पूरी रात ये दुआ कर रहे थे कि भगवान कुछ भी करके नेगेटिव है। हालांकि डॉक्टर ने खुद कंफर्म कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट्स ऑन द वर्ज ऑफ रिकवरी। एंड उस रात पूरी रात क्योंकि हमें मेरे को और मेरे बेटे को कोई सिम्टम्स ही नहीं है और न थे, हम पूरी रात यही दुआ कर रहे थे कि भगवान मेरा और इसका नेगेटिव आए क्योंकि वो पूरे टाइम मेरे से चिपका रहता है। तो we actually wanted it to be negative. And yesterday we got our reports and they were positive. हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना, you know। और इससे पहले हम ये समझ पाते दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कॉल्स आने लगे टू कंफर्म डू यू नीड अ कंसल्टेशन, ओके व्हाट वर द सिम्टम्स, ये हुआ वो हुआ कैसे हुआ क्या हुआ, कोविड सेंटर की तरफ से हमें फ़ोन आने लगे। एंड हम दोनों सिर्फ बैठे थे, वो अंदर और मैं इधर अपने बेटे को लेके बैठी थी। एंड आई थॉट कि लेट मी टेल इट टू माय सोसाइटी। और उसके एक दिन पहले ही हमारे प्रेसिडेंट ने बहुत हैप्पीली ग्रुप में डाला था कि सोसाइटी इज कोरोना फ्री एंड वी ऑल वर रियली हैप्पी अबाउट इट। तब तक मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी नहीं आई थी एंड वी बोथ वर अप्रिशिएटिंग इट एंड मीनवाइल ऐसा हो गया। एंड यस्टरडे जब हमारी रिपोर्ट्स आई, आई वाज अबाउट टू कॉल and inform him, लेकिन my son was crying and ऐसा नहीं है कि कोई आपको बताना नहीं चाहता है या ऐसा, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था ये चीज़ छुपाने का, लेकिन उसके पहले इतनी चीज़ें हो गई थी तो वो कहते हैं ना इतने बिखर गए थे सुन के कि हमें समेटना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। We told to our families and they were crying। होता क्या ना, जब कुछ भी होता है तो आपके दिमाग में पॉजिटिव बात नहीं आती, आपके दिमाग में एक्सट्रीम नेगेटिव हो सकता है ना, आपके दिमाग में वो बात आती है। वही हमारे साथ हो रहा था और हमें अपनी चिंता नहीं हो रही थी, हमें चिंता हो रही थी अपने बेटे की। और तब तक लकीली जो यहाँ के इंचार्ज हैं जिनको because government के calls आ चुके थे, he was informed about that and he took the in charge. He actually asked everything and guided us, consulted in a very good way. He's really patient and उन्होंने आज medicines वगैरह भी भेजी, हमारा घर sanitize हो चुका है। पर ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि पहली there are few things that I really want to clear and tell you all कि इसके साथ हमें जीना है, ये किसी को भी हो सकता है। दूसरा, क्योंकि हम एसिम्प्टोमेटिक है, मैं और मेरा बेटा, तो वी आर नॉट इन्फेक्शियस। दिस इज व्हाट आई हैव रेड। क्योंकि जब घर में कुछ होता है ना तो हम जितने भी फॉर्म्स होते हैं ना किसी भी चीज़ को जानने के, हम वो सब पता कर लेते हैं।
तीसरी चीज़, ये हमारी बॉडी में रह जाता है। अगर वो, क्योंकि हालाँकि हम रिकवर हो चुके हैं और अभी हमें और 14 दिन होम आइसोलेशन में रखा गया है, तो जो बचा-खुचा होगा वो भी निकल जाएगा, बट देयर आर चांसेस दैट द वायरस रिमेन्स इन अस, दैट बिकॉज़ ऑफ द मेडिकेशन एंड ऑल इट्स डेड, बट इट sometimes remains, but that is not infectious. This is what I have read and watched. सो अगर वो रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉजिटिव आओगे, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये पूरी जर्नी में और आने वाले टाइम में ये है कि until and unless you don't feel that you are healthy, you are not healthy. The moment you start feeling कि now I am healthy, I can walk, I can do things actively, so everything is fine. And उसके अलावा दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग द वीडियो, अगर आपको कोई भी लगता है कि आपके सिम्टम्स हैं, प्लीज़ विजिट करिए डॉक्टर को, बिकॉज ठीक है, उस हमें लगता है कि हम ठीक हो जाते हैं बस, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आगे चल के कोई दिक्कत हो तो वैसा काम क्यों करना। चौथा, हम सब पढ़ते हैं, हम सब न्यूज़ देखते हैं, लेकिन हम एक्चुअली इसकी सीरियसनेस को लेते नहीं है, क्योंकि जब तक अपने घर में कुछ नहीं होता हमें नहीं समझ में आता। अभी मेरे लिए वो टाइम इतना खराब था जब मेरा बेटा he was calling his father कि मुझे ले लो, and he was so helpless, उसको ले नहीं सकते थे। और टचवुड सिचुएशन हमारे घर में फिर भी इतनी बेटर थी कि वो लेवल इतना हाई नहीं था। मैं ये सोचती थी जिनके घर में उतना हाई लेवल होगा वो लोग कैसे रहते होंगे, या फिर जिसके एक्चुअली इतना एकदम सिम्टम्स ऐसे थे कि उसको लेके चले गए हॉस्पिटल, वो मिल नहीं सकी। तो प्लीज़ सिचुएशन को, लेट्स ऑल टेक द सिचुएशन इन अ मोर सीरियस वे। हालांकि कुछ हो तो आप, यू आर एक्चुअली हेल्पलेस। So this is a request to everyone to watch the video and realize कि जब तक खुद के घर में कुछ नहीं होता है हम चीज़ें सीरियसली नहीं लेते हैं, और हम लेते भी हैं तो हम समझ नहीं पाते कि वो कैसा लगता है। हम किसी के दर्द को महसूस नहीं कर सकते जब तक वो दर्द खुद को ना हो। And there is something that I really want to tell people, that this is not for the sympathy's sake, this is to make you aware कि ये किसी को भी हो सकता है, और ये होता है तो सिचुएशन कैसी हो जाती है। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए, और हम भी जल्दी ही दैट्स आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट स्टिकर टू बी आउट ऑफ आवर होम, एंड वी रिकवर, सब ठीक हो जाए। एंड आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। एंड देयर आर नो, आई फॉरगॉट टू ऐड, देयर आर नो एक्स्ट्रा मेडिसिन जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो आप नॉर्मली भी ले लेते हो फीवर में, सो देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट। इसके साथ तो अब जीना नहीं है, मैं यही बोलूँगी, एट द वैक्सीनेशंस आर नॉट देयर, सो प्लीज डोंट वरी, जस्ट हैव अ ग्रेट डे, स्टे हेल्दी।